Hello and welcome, friends. Namaskar. The story that caught my eye. Today's story is the one in the Indian Express front page story. CWC resolution skips reference to Hamas or terror. Frankly, I am stunned. The Congress Working Committee passes a resolution reaffirming their support to a Palestinian state. All very good. But then chooses to avoid any reference to Hamas or terror just days after hundreds of innocent civilians in Israel have been killed in what I can only describe as terror attacks. Several more have been taken hostage, including little infants and children. And you pass a resolution without any mention to Hamas or the terror that's taken place? Terror must be condemned in all its forms. You claim, or the Congress claims, to be the party of Mahatma Gandhi, the apostle of non-violence. Why would you then not condemn the activities of Hamas in killing non-combatants? Someone told me that a section of the Congress might think that by not mentioning Hamas or terror, they are appeasing Muslims. Really? Do you really think that the Indian Muslim is actually going to be influenced by whether you take out a statement against the Hamas or not? And in any case, why should that matter? You must take a principled stand on such issues. And it takes me back to my first month in journalism, October-November 1988. Guess what the Rajiv Gandhi government did? They essentially banned the publication of satanic verses in the country, the import of the book in India, long before any other part of the world had banned the book. Without reading the book, satanic verses was banned in India out of fear of Muslim fundamentalists and how it would affect vote bank. 1988 to 2023. Some things sadly haven't changed. The Indian National Congress needs to take a principled stand on the violence in Israel and the Gaza Strip. Condemn all forms of violence against innocent civilians, because that is the only way one can move ahead in a civilized society. Forget vote banks. Muslim vote bank, Hindu vote bank should be forgotten. This should be about the principle of taking on aggression against non-combatants. Think about it. That is my take. Namaskar.
इनको पिकअप करने आया तो इसके साथ में इनको बैठ गए दोनों आपस में बात बात इस लड़की को मारा इस बंदे ने। हाँ मैं तो ये पीछे बैठे इसने निकाला। भाई हवा छोड़ दो, हवा छोड़ दो भाई, हवा छोड़ दो, हवा छोड़। मैडम सो मत आप सो मत। मम्मी हॉस्पिटल लेके चलो। छोड़ो भाई मैं कहीं ना भाग रहा हूँ, मैं भाग ना रहा हूँ, सब लोग हैं। भाई दोस्तों, आप 1999 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में तो जानते ही होंगे, जिसमें भारत की जीत हुई थी। लेकिन उसी समय हमारे भारत पर लगभग हर देश ने हमला कर दिया था। कैसे भारत इस हमले से बचा पाया और इजराइल ने कैसे भारत साथ दिया था, ये सब आज हम आपको बताएंगे। ये वीडियो हर भारतीय को देखना बेहद जरूरी है, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बात शुरू होती है 1984 से, जब भारत ने पाकिस्तान पछाड़ते हुए अक्शियाई चीन पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान सेना इस हार की वजह से बदले की आग में जल रही थी और उन्होंने भारत से बदला लेने के लिए एक योजना बनाई जिसका नाम था ऑपरेशन कारगिल। पाकिस्तान सेना ने तब के प्रेसिडेंट जिया उल हक के सामने यह योजना रखी, जिसके तहत अगर वह कारगिल पर कब्जा कर लेते हैं तो कश्मीर को बाकी के भारत से अलग किया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति जिया उल हक को इस ऑपरेशन के सफल होने पर विश्वास नहीं था, इसीलिए उन्होंने इस ऑपरेशन को कभी लॉन्च ही नहीं किया। लेकिन 1984 के 15 साल बाद 1999 में इस ऑपरेशन को दोबारा शुरू किया गया। यह बात है 5 मई 1999 की, जब भारत में बॉर्डर के पास रह रहे लोगों ने वहां पर संदिग्ध गतिविधि देखी तो तुरंत उन्होंने भारतीय सेना को बता दिया। इंडियन आर्मी ने 5 सैनिकों बॉर्डर का मुआयना करने के लिए भेज दिए, लेकिन बदकिस्मती उनमें से कोई भी वापस लौटकर नहीं पाया। भारतीय सेना को जिस बात का डर था वही हुआ। पाकिस्तानी सेना के जवान कारगिल में घुस चुके थे। यह बात पता चलते ही इंडियन आर्मी ने ज्यादा वक्त न गवाते हुए तुरंत ऑपरेशन विजय का ऐलान कर दिया, जिसमें भारत के 30,000 से भी अधिक सैनिक शामिल थे। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के लिए सबसे बड़ी समस्या यह थी कि दुश्मन कारगिल के पहाड़ियों पर तैनात था। जैसे ही हमारे सैनिक पहाड़ियों पर चढ़ाई करते तो ऊपर से गोलियों की बौछार हो जाती, जिसकी वजह से भारत के कई जवान शहीद हो गए। और इसके अलावा पाकिस्तान के पास अमेरिका और चाइना के दिए गए हाईटेक वेपन भी थे। इसके अलावा अमेरिका ने भी कारगिल के युद्ध में भारत को धोखा दिया। जब ऐन वक्त पर भारत को पाकिस्तान के आर्मी के ठिकानों को ढूंढने के लिए लड़ाकू विमानों में जीपीएस की सख्त जरूरत थी, तभी अमेरिका ने भारत को जीपीएस सर्विस देने से साफ इनकार कर दिया। ऐसी संकट के समय में दुनिया का केवल एक देश था जो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था, और उस देश का नाम था इजराइल। जी हाँ दोस्तों, इजराइल ने अपने हाईटेक वेपन का भंडार भारत के लिए खोल दिया। भारत को उस वक्त मानव रहित विमानों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जिससे कि वह पाकिस्तानी आर्मी पर ऊपर से नजर रख सके। इजराइल ने भारत को न सिर्फ मानव रहित विमान उपलब्ध करवाए, बल्कि पाकिस्तानी आर्मी के सैटेलाइट के पोजीशन के रिजल्ट भी भारत को दिए। कारगिल से 1000 किलोमीटर दूर अरब महासागर में इंडियन नेवी पाकिस्तानी नेवी का मुंहतोड़ जवाब दे रही थी, लेकिन पाकिस्तान के पास अमेरिका की दी हुई हार्पून मिसाइल थी, जिनका इंडियन नेवी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी इजराइल ने भारत को बराक मिसाइल दी। ये मिसाइल कितनी खतरनाक थी, आप इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जैसे ही यह मिसाइल भारत को मिली, उसके बाद पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हुई कि वह अमेरिका की हार्पून मिसाइल भारत पर दाग भी सके। इसके अलावा इजराइल ने इंडियन एयरफोर्स को मिराज फाइटर जेट के लिए लेजर गाइडेड मिसाइल उपलब्ध कराए, जो दुश्मन को दिन और रात दोनों समय ढूंढ ढूंढ कर मारता था। जैसे जैसे कारगिल युद्ध लंबे समय तक खींच रहा था, वैसे वैसे भारत के पास गोला बारूद खत्म हो रहा था। ऐसे समय में इजराइल ने भारत को तुरंत गोला बारूद मुहैया कराया। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि इजराइल पर अमेरिका और चीन के समेत कई बड़े बड़े देशों ने अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाया कि वह भारत की मदद ना करें, लेकिन इजराइल ने किसी देश की नहीं सुनी और कारगिल युद्ध के अंत तक भारत के साथ खड़ा रहा। तो दोस्तों, हम इस प्रकार यह कह सकते हैं कि भारत के कारगिल पर विजय का श्रेय भारत की सेना के बलिदान को जाता ही है, लेकिन उसके साथ भारत के एक शक्तिशाली मित्र इजराइल को भी यह श्रेय जाता है। तो दोस्तों, ये वो घटना थी जिसमें भारत के लिए इजराइल पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार हुआ है जब भारत ने इजराइल की मदद की है और इजराइल ने भारत की मदद की है।
उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, क्योंकि हर भारतीय को पता होनी चाहिए भारत इजराइल दोस्ती की ये अमर कहानी। जय हिंद। नियुक्ति दो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करो, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करो, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करो, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करो।